Hello students, today we are on lecture number 4 of SCRA Act 1956. तो हमें जो नया टॉपिक शुरू करना है दैट इज बेसिकली पेनल्टीज से रिलेटेड है, पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स. तो लेट्स बिगिन. पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स. तो ये टॉपिक जो है इसमें काफ़ी कुछ हमने ऑलरेडी सेबी वाले चैप्टर में कर रखा है, तो आप इसको बस रिकॉल करने के हिसाब से करिए. तो लेट्स बिगिन विद दैट. So the act prescribed various penalties against person who might be found guilty under section 23 of the act. Okay, the offences are listed below. तो any person करके कुछ offences दे रखे हैं. Any person who without reasonable excuse fails to comply with requisition made under subsection 4 of section 6. So first is fails to comply with section 6 subsection 4. Now what is section 6 subsection 4? It relates to production of documents when called by the authority, any document which has to be produced before the authority and you fail to produce that document, relating to production of books of accounts, documents. इससे रिलेटेड ये सेक्शन है और उसमें अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, enters into any contract in contravention with section 13 or section 16. Contravention किसका कॉन्ट्रावेंशन? सेक्शन 13 या सेक्शन 16 का. सेक्शन 13 किससे रिलेटेड है? कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नोटिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट्स इन नोटिफाइड एरियाज आर इलीगल. कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे लगता है थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसका फॉर्मेट. सो सेक्शन 13 contracts in notified areas are illegal and section number 16. Section number 16 to power to prohibit contract in certain cases. Power to prohibit contract in certain cases. Okay, contravenes with the provisions of section 17. So contravenes with section 17. And section 17 relates to licensing of dealers. Contravention with 17A. 17A relates to public issue and listing of securities. Okay, owns or keeps a place other than the recognized stock exchange, which is used for the purpose of entering or performing any contract in contravention of the provisions, manages or controls or assists in keeping any place other than that of recognized stock exchange, which is used for the purpose of entering or performing any contract. मतलब recognized stock exchange के अलावा कोई और place जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एट other than
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एन एजेंट ऑथराइज्ड as such under the rules or bylaws, or not being a dealer licensed under section 17, willfully represent or induces any person believe the contract can be entered। यानी आप डीलर नहीं है फिर भी आप डील कर रहे हैं और इंड्यूस कर रहे हैं दूसरे पर्सन को कि यू आर द डीलर। नॉट डीलर एंड देन डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इसके अलावा नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और हिज एजेंट देन एंड लाइसेंस एंड देन एडवर्टाइज, आप अपना ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो देन इट इज अ कॉन्ट्रावेंशन। joins, gathers or assists in gathering at any place other than the place of business specified by the bylaws of recognized stock exchange any person for making bids or offers for entering into a performing contract। कोई और प्लेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने आपकी बता रखी है कि हाँ दिस इज योर ऑफिस बट यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट एनी अदर प्लेस, देन इन ऑल सच केसेस without prejudice to any award of penalty by the adjudicating officer or SEBI, be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or fine which may extend to rupees 25 crore or both। In all these cases penalty कौन लगा सकता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या सेबी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और सेबी। और कितनी पेनल्टी? imprisonment up to 10 years, fine up to 25 crore और both। So इतने तक की पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन के केसेस में लगाई जा सकती है। So please note it down। So these are the penalties which can be imposed। Now let's take further penalties। इसके आगे 3 penalties ही है अभी हमारा टॉपिक, तो वो ले लेते हैं अब हम। So now various penalties are given। Then penalty for failure to furnish periodical returns। Failure to furnish periodical returns। So what is the penalty? If recognized stock exchange neglects or fails to furnish periodical returns, incorrect or incomplete periodical returns to SEBI, or neglects to make or amend rules or bylaws, fails to comply with the directions of SEBI, then उसके ऊपर penalty कितनी? Not less than 5 lakh up to 5 crore। 5 lakh maximum 5 crore। Second is contravention where no separate penalty has been provided। No separate penalty has been provided। मतलब इस प्रकार का कोई ऑफेंस किया जिसमें सेपरेट पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है तो उसमें होगा 1 लाख
which may extend to 1 crore. 1 lakh to 1 crore. Now the third one, failure to furnish information or return. So basically, failure to furnish information or return. So in that case, false or incorrect information documents अगर आप सबमिट करते हैं, then liability is 1 lakh subject to the maximum 1 crore. 1 lakh maximum 1 crore. To maintain books of accounts, वो अगर आपने maintain नहीं किया तो liability is 1 lakh and subject to the maximum 1 crore. इसके बाद है failure to enter into an agreement. Agreement करना था, agreement नहीं किया, in that case same penalty 1 lakh subject to the maximum 1 crore. Next one is failure to redress investor grievance. Failure to redress investors grievance, that is again 1 lakh subject to the maximum 1 crore. Sixth, segregate securities or money of client. Any person who is a registered stockbroker fails to segregate securities, यानी अलग अलग करना, और money of clients, then to segregate, failure to segregate securities and money. तो in that case that is basically on broker के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है ये. तो कितनी पेनल्टी है? अगेन 1 lakh सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 crore. नेक्स्ट इज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ लिस्टिंग कंडीशन और डीलिस्टिंग कंडीशन. फेलियर टू कंप्लाई listing or delisting conditions. So in that case the penalty is rupees 5 lakh which may extend to 25 crore. इसको नोट करें. So these are the various penalties. इसके अलावा कुछ और penalties भी हैं. Let's take up them also. Penalty for excess dematerialization or delivery of unlisted securities. अच्छा, ये वाली जो penalty है इसमें क्या लिखा हुआ है? If a company managing CIS or if a company or any person managing CIS or mutual fund or any other development scheme AIF fails to comply with the listing conditions or delisting conditions, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है. If any issuer dematerializes securities more than the issued securities, issue से ज़्यादा आपने dematerialize करवा लिया, और delivers in the stock exchange which are not listed in the recognized stock exchange, or delivers where no trading permission has been given
देन पेनल्टी कितनी 5 लाख सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 25 करोड़। तो एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन, इशूड से ज्यादा डीमटेरियलाइज करवा ली, वहां पे डिलीवर कर दी, वहां पे इंस्ट्रक्ट कर दिया जहां पे ट्रेडिंग परमिशन नहीं है, तो देन पेनल्टी। देन फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद रूल्स, तो in that case 5 crore 25 subject to the maximum 25 crore or 3 times the amount of gain whichever is higher, 5 crore then subject to the maximum 25 crore or 3 times profit gained whichever is higher। So ये हो गई आपकी पेनल्टीज का टॉपिक। ये सारी पेनल्टीज हो गई अब आपकी। अब आगे लेते हैं हम So next is factors to be taken by adjudicating officer। तो adjudicating officer जब penalty decide करता है then what are the factors which are considered by him? Factors considered by AO that is adjudicating officer। तो benefit or gain to wrongdoer, loss to aggrieved party, and repetitive nature of default। देन इसके बाद टॉपिक दे रखा है आपका सेटलमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। सो सेटलमेंट वाला टॉपिक हमने सेबी में भी किया था। तो whenever there is any person on whom proceeding is initiated under section 12A or 23I, तो proceedings under section 12A और 23I। 12A है इशू ऑफ डायरेक्शंस बाय सेबी और 23 है इंक्वायरी। तो अगर किसी पर्सन के ऊपर इन सेक्शन के अंडर में प्रोसीडिंग हो रही है तो सच पर्सन मे अप्लाई फॉर सेटलमेंट। वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और सेबी विल टेक इनटू कंसिडरेशन द ग्रेविटी
and the impact of defaults, and then it can agree for settlement on some additional payment of some monetary fines and something like that, or some terms and condition. Okay, so basically ये आपका हो गया है सेटलमेंट, इसको भी नोट कर लें आप. सो आई होप यू रिमेंबर सेटलमेंट में भी, सेटलमेंट हमने सेबी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. So whenever there is a proceeding against a person under section 12A or 23I, then such person can apply for settlement. SEBI considers that case, उसकी सीरियसनेस, ग्रेविटी का मतलब होता है उसकी सीरियसनेस को कंसिडर करते हुए सेटलमेंट का डिसीजन लेता है कि सेटल करना है या नहीं करना है, और अकॉर्डिंगली उस पर डिसीजन लिया जाता है. मॉनेटरी एक्स्ट्रा पेनल्टी वगैरह लगा दी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ सेटलमेंट. इसके बाद है रिकवरी ऑफ अमाउंट. रिकवरी ऑफ अमाउंट में ये है 23JB. इफ एनी पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट or fails to comply with any of the directions of SEBI for refund of monies, or fails to comply with direction of any order under 12A, or fails to pay any fees to SEBI. तो कौन कौन सा फेलियर? फेल्स, पेनल्टी, डायरेक्शन, रिफंड करने के लिए कहा वो नहीं किया, रिफंड, ठीक है, और इसके अलावा फीस. ये अगर किसी पर्सन ने पे नहीं की तो रिकवरी ऑफिसर, हु इज बेसिकली एन ऑफिसर फ्रॉम सेबी, तो रिकवरी ऑफिसर इज मीन्स एनी ऑफिसर ऑफ सेबी हु इज ऑथराइज्ड और हैविंग अथॉरिटी, ठीक है. देन रिकवरी ऑफिसर जो कि कौन है? सेबी का ऑफिसर है. रिकवरी ऑफिसर क्या कर सकता है ऐसे केसेस में? मे ड्रॉ अप अंडर हिज सिग्नेचर स्टेटमेंट. क्या क्या कर सकता है वो? फॉलोइंग मोड्स: अटैचमेंट का मतलब होता है सीज करना, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. देन बैंक अकाउंट का अटैचमेंट. देन अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल और यहीं पे मैं लिख रही हूं इमूवेबल. देन अरेस्ट ऑफ सच पर्सन एंड देन अपॉइंटिंग रिसीवर. So these are the actions which can be taken by recovery officer. ये भी सेबी वाले चैप्टर में आई थिंक लास्ट टॉपिक आता है, उसमें आया हुआ है ये पूरा टॉपिक. अटैचमेंट का मतलब होता है सीज करना, आपकी मूवेबल्स इमूवेबल्स को सीज कर लेना, सेल करवा देना, आपके बैंक अकाउंट को सीज कर लेना, आप अरेस्ट करवा देना. तो ये सारी पावर किसकी है? रिकवरी ऑफिसर की है. नेक्स्ट इज कंटिन्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग्स.
So what is that? 23JC. Where a person dies, his legal representative shall be liable to pay any sum which the deceased would have been liable to pay if he had not died in the like manner and to the same extent as the deceased. यानी कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके ऊपर कोई पेनल्टी है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो पेनल्टी पे करेगा. However, in case of any penalty payable under this act, a legal representative shall be liable only in the case penalty has been imposed before death. पर सिर्फ जो पेनल्टी इम्पोज हो गई है सिर्फ उसी के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा. एनी प्रोसीडिंग फॉर डिस्चार्जमेंट, रिफंड और एक्शन फॉर रिकवरी बिफोर रिकवरी officer under this act except a proceeding for levy of penalty initiated against the deceased before his death shall be deemed to have been initiated against the legal representative. तो जो भी प्रोसीडिंग रिकवरी ऑफिसर को करनी है वो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में करेगा and may be continued against the legal representative from the stage at which it stood on the date of death of the deceased person. Then every legal representative shall be personally liable for any sum by him in his capacity as legal representative if while his liability for such sum remains undischarged. So basically this section says where a person डाइज, जहां पे एक पर्सन की डेथ हो चुकी है और उसके ऊपर कोई पेनल्टी है, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लाइबल टू पे पेनल्टी. ठीक है. इसके अलावा ही शैल बी जो रिकवरी ऑफिसर है वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है. द लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ विच एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटी. यानी डिसीज्ड की जो भी एस्टेट हैं वो सफिशिएंट होने चाहिए फॉर मीटिंग आउट द लाइबिलिटी. मतलब कि इसका ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का जो भी लाइबिलिटी है वो कहाँ तक लिमिटेड रहेगी, वो रहेगी अप टू द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन. यानी जो पर्सन की डेथ हो चुकी है जिसका वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके असेट्स तक. तो ये हो गया आपका, ये भी हमारा सेबी वाले चैप्टर में आया था. क्रेडिटिंग, सारा जो भी ये पेनल्टी वगैरह होता है that is credited to the Consolidated Fund of India. Amount of penalty अपील टू सेट. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक दे रखा है दैट इज अपील टू सेट. सो अपील टू सेट भी आप कर चुके हैं. सो व्हाट इज बेसिकली अपील टू सेट? So, any person who is aggrieved by the decision of recognized stock exchange or adjudicating officer or any order made by SEBI. तो recognized stock exchange से अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई adjudicating officer के decision से कोई परेशानी है या SEBI से कोई परेशानी है, तो as per section 23I subsection 3 आप अपील कर सकते हैं कहाँ पे? SAT. ये टॉपिक हमारा सेबी वाले चैप्टर में भी आया था और ये यहाँ पे इस चैप्टर में यही लिखा गया है कि आपको सेबी वाला चैप्टर रेफर करना पड़ेगा. फर्दर आपको अपील कितने दिन में करनी है? 45 डेज में करनी है विद अ कॉपी ऑफ प्रीवियस डिसीजन. ठीक है.
However, SET may entertain an appeal after expiry of the SET period. Condonation of delay allowed है, मतलब 45 days के beyond भी आप जा सकते हो अगर sufficient ground है तो, ठीक है. और opportunity of being heard is provided by SAT to both the parties and accordingly SAT क्या कर सकता है, पिछले decision को continue कर सकता है, cancel कर सकता है, modify कर सकता है. और अगर आपको SAT के against में जाना है तो SAT के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट. आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. तो बेसिकली विद इन 45 डेज किसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हो? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउड है. सैट की पावर क्या हो गई? कैंसिल करना, कंटिन्यू करना और मॉडिफाई कर देना क्या? प्रीवियस डिसीजन. नेक्स्ट, सैट के बाद अपील कहां हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में विद इन 60 days. So this is your SAT. I hope you are able to recall it. The next topic is offences. Section 23M provides that if any person contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of this act or rules or bylaws for which no punishment is provided elsewhere shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 10 years or a fine which may extend to 25 crore or both. यानी कि आपको इस तरीके का ऑफेंस जो कि इस एक्ट में मेंशन नहीं है तो 10 साल तक की सजा, 25 करोड़ तक की पेनल्टी या दोनों. If a person fails to pay the penalty imposed by adjudicating officer or SEBI or fails to comply with the directions, he shall be punishable with imprisonment not less than 1 month, which may extend to 10 years, or penalty fine which may extend to 25 crore या दोनों. Composition: any offence punishable under this act not being an offence punishable with imprisonment only or with imprisonment and also with fine may either before or after the institution of any proceeding be compounded by SAT or court before which proceedings are pending. इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम अपने ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकते हैं. कंपाउंड का मतलब होता है अपनी गलती मान के डिफॉल्ट सही करके और एक अपील हम लगा देते हैं कि भैया हमसे गलती हो गई, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दो और हमें फ्री कर दो, ठीक है. तो क्या ऐसा, क्योंकि कंपनी लॉ में बिल्कुल फुल्ली अलाउड है ये और हम कंपाउंडिंग बहुत लगाते हैं जब कोई गलती हो जाती है, लेकिन कंपाउंडिंग आप उन्हीं ऑफेंस की लगा सकते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन. अगर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है किसी ऑफेंस में, ये लिखा है कि अच्छा अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ का एक एग्जांपल लेते हैं, सेक्शन 129 रिलेट्स टू योर अकाउंट्स में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई तो अगर उसमें ये लिखा है कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो आपको इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी होगा, तो आप कंपाउंडिंग नहीं करवा सकते. इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ और लिखा है तो आप कंपाउंडिंग करवा सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे हम कंपनी लॉ के अंडर में कंपाउंडिंग हम करवाते हैं रीजनल डायरेक्टर के पास, कुछ केसेस में एनसीएलटी के पास. यहाँ पे सेबी के केस में आप कहाँ कंपाउंडिंग के लिए जा सकते हैं? सैट के पास या जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग लगा दी गई है उसके पास. तो बेसिकली क्या हुआ ये? नॉट पनिशेबल with imprisonment only or with imprisonment and with fine, उनके ऊपर नहीं होगा. So not applicable. Compounding
नॉट एप्लीकेबल, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अगर किसी ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट ओनली लिखा हुआ है या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लिखा है, तो ऐसे केसेस की कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो किसकी होगी? या तो लिखा है सिर्फ फाइन, या लिखा है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ और लिखा है, ठीक है। और किसके सामने आप किसको करवा सकते हैं कंपाउंडिंग? बिफोर सैट में आप करवा सकते हैं कंपाउंडिंग, या कोर्ट में जिधर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है वहां पे करवा सकते हैं। Contravention by companies, where a contravention of any of the provisions or rules made thereunder has been committed by any company, every person who at the time when contravention was committed was in charge and was responsible to the company for the conduct of the business as well as the company shall be deemed to be the contravention and shall be liable to be proceeded and punished। तो यानी कंपनी से अगर ऑफेंस हो गया है तो जिसने ऑफेंस किया था वो और कंपनी दोनों लाइबल हो जाएंगे फॉर पनिशमेंट। However, any such person shall not be liable to any punishment if he proves that the contravention was committed without his knowledge। यानी कि अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर देता है कि मुझे जानकारी नहीं थी और कॉन्ट्रावेंशन हो गया, तो इन दैट केस ही शैल नॉट बी लाइबल। सो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। सेक्शन है सीआरपीसी, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 23 शैल बी डीम्ड टू बी कॉग्निजेबल ऑफेंस within this code। Cognizance by court, section 26, no court shall take cognizance of an offence punishable under this act or rules save on complaint made by central government or state government or SEBI or recognized stock exchange। तो कोर्ट की पावर नहीं है, बट बेसिकली कंप्लेंट कैन बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेबी और बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो लेकिन इसमें यहाँ पे एक और बात कही गई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट करके। तो ये हमने सेबी में भी पढ़ा था, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज इट मे फील नेसेसरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश, then it shall consist of single judge। आई होप यही है जो हमने पढ़ा था, हाँ, सिंगल जज, और ये जो सिंगल जज है who shall be appointed by central government with the concurrence of chief justice of high court, or person who is shall not be qualified for to be appointed as judge of special court unless immediately before the appointment holding the office of session judge or additional session judge। तो यानी who can become single judge, additional session judge या session judge। क्वालिफिकेशन क्या हो गई? सेशन जज और (26B) कौन से ऑफेंस ट्राइबल होंगे? Provides that all offences committed under this act shall be taken cognizance of and tribal by the special court। और इसके अलावा अपील आप हाई कोर्ट पे कर सकते हैं इसकी, जो आपके स्पेशल कोर्ट है, एज पर द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज
all powers conferred under CRPC if special court within the local limits of the jurisdiction where the court of session trying cases, तो यानी अपील वगैरह की प्रोविजन हाई कोर्ट के पास है. एप्लीकेशन देन 26D आपको दे रखा है. देन CRPC के हिसाब से ये चलेगा आपका स्पेशल कोर्ट. देखिए इसमें कुछ खास नहीं है क्योंकि अभी हर जगह क्योंकि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. देन उसके अलावा ये है कि जब तक ये स्पेशल कोर्ट नहीं इम्प्लीमेंट हो जाता तब तक जो है आपके जो केसेस जो ऑफेंस के हैं वो एंटरटेन करेगा सेशन कोर्ट. तो ये आपकी कोर्ट वाली बात हो गई जो अपन ने ऑलरेडी कर रखी है. तो इसको भी आप एक बार नोट कर लें. ये सारे टॉपिक्स आपने सेबी में कर रखे हैं सेबी वाले चैप्टर में, इसलिए मैंने बार बार इनको रिपीट नहीं किया है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज टॉपिक्स. नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, जिसमें पहला टॉपिक आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. So this is one of the important provisions of security contract rules. Rule 19 provides for the complete procedure in this regard. A public company as defined under Companies Act desirous of getting its securities listed on recognized stock exchange shall apply for the purpose to stock exchange. तो अगर आपको लिस्ट होना है आपको स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करना पड़ेगा. और कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ करना पड़ेगा ये इस टॉपिक में दे रखा है. तो फर्स्ट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सेकंड इज कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर, कॉपीज ऑफ ऑफर फॉर सेल, सर्कुलर्स, एडवर्टाइजमेंट. देन बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट फॉर लास्ट 5 years. देन अगर कोई कंपनी नई इनकॉर्पोरेटेड है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो शॉर्टर पीरियड के लिए स्टेटमेंट शोइंग डिविडेंड और कैश बोनस अगर आपने कुछ दिया है. देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अग्रीमेंट वेंडर्स प्रमोटर्स के साथ में अग्रीमेंट क्या है, अंडर राइटर्स सब अंडर राइटर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, अग्रीमेंट विद मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज, ट्रेजरर, सेलिंग एजेंट अगर कोई है, MD के साथ. देन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एवरी लेटर, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर और एनी अदर डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट कंटेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ डेट्स एंड पार्टीज ऑफ ऑल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी आपके मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द कंपनी सिंस इनकॉर्पोरेशन, पर्टिकुलर्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश. ठीक है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे अगर आपने इशू किया है, ऑप्शंस अगर आपने इशू किया है. देन स्टेटमेंट ऑफ एनी कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, ठीक है, granted to any person in regard to securities, acknowledgement card of filing offer document with SEBI, agreements with IFCI वगैरह के साथ, इनके साथ कोई agreement अगर आपने किया हुआ है, shares forfeited इनका डिटेल. देन highest 10 shareholders कौन से हैं उनका डिटेल, that has to be mentioned. Particulars of shares or debentures with the permission to deal is applied for. सो ये सारे डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज में इफ़ यू वांट टू गेट लिस्टेड. अगर आपको लिस्टेड होना है तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो फुलफिल करने पड़ेंगे. तो ये पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट अवे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता हो. तो बेसिकली ये सारा आपका सबमिशन हो जाएगा. इसके आगे लेते हैं. देखिए इसके आगे जो टॉपिक दे रखा है दैट इज रूल 19 आपको दे रखा है, पर वो मैं कल लूंगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. मैं अभी डायरेक्टली आपके लिए रूल 21 ले रही हूँ विच इज डी लिस्टिंग, क्योंकि डी लिस्टिंग चैप्टर आपने कर लिया है तो एक बार हम उसे देख लेते हैं. रूल 21 डील्स विद डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन may be taken under this act, any other law for time being in force, delist any securities listed. तो यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको पावर दे रखी है डीलिस्ट करने की. बिल्कुल हमने डीलिस्टिंग में भी पढ़ा था. तो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं देख लेते हैं हम. फर्स्ट इज द कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस
एक तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की पावर तो है ही, साथ में इसमें फर्दर क्या लिखा हुआ है, डीलिस्ट एनी सिक्योरिटीज लिस्टेड देयर ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। तो सेबी ने और कौन कौन से ग्राउंड्स बना रखे हैं? फर्स्ट वन इज कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। तो 3 साल हो गए, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो गई। सेकेंड इज ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी हैज रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 months, यानी 6 महीने से ऊपर हो चुका है और ट्रेडिंग सस्पेंडेड है। ये सस्पेंशन तब होता है जब आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया हो। थर्ड वन इज सिक्योरिटीज हैव रिमेन्ड इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इन प्रीसीडिंग 3 years। पिछले 3 साल में आप इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो, ठीक है, आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज कोई खरीदता ही नहीं है। वैसे ये ग्राउंड इतना वैलिड नहीं है, नहीं खरीदा तो क्या करें, हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, बट बेसिकली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। The company or its promoters or any of the directors convicted for failure to comply with any of the provisions of SEBI Act, Depository Act, rules, regulations, इसका non compliance कर दिया आपके promoter director ने। Address of the company or its promoters or directors are not known और false address furnish कर रखे हैं आपने, ठीक है, और registered office का false address है as per Companies Act। Shareholding of the company held by public falls below the minimum applicable, below minimum applicable। So public की शेयर होल्डिंग जो 25% की हम बात करते हैं वो भी नहीं रही, तो इन दैट केस आपकी कंपनी डीलिस्ट हो सकती है। तो फर्दर इसने क्या दे रखा है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डीलिस्ट होने से पहले। The company, if the securities are delisted, अगर securities delist होती हैं, company promoter director shall be jointly and severally liable to purchase the outstanding securities। फिर वो delisting के provisions चलेंगे। अब किसकी liability आ जाएगी? कंपनी के promoters directors की to purchase the outstanding securities। Then और फिर वो delist हो जाएगा और फिर आपको the recognized stock exchange पे इसमें further दे रखा है कुछ कंडीशंस आपको दे रखे हैं जो एज इट इज डीलिस्टिंग की है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, कि भाई आपका फेयर वैल्यू दी जाएगी विच शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम अ वैल्यूअर। तो ये सारे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं डीलिस्ट के रिगार्डिंग। सो अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी डीलिस्ट एनी ऑफ द सिक्योरिटीज देयर ऑन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द सिक्योरिटीज हैव बीन लिस्टेड। ओके, तो ये पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डीलिस्टिंग में हमने ऑलरेडी डिटेल में सारे पॉइंट्स किए हैं। बस आपको क्या पढ़ना है, आपको ये जो मैंने 4-5 पॉइंट्स ऊपर बोले हैं, जैसे कि लॉस इन प्रीसीडिंग 3 consecutive years नेगेटिव नेटवर्थ, दूसरा मैंने बोला है सस्पेंशन फॉर मोर देन 6 months, तीसरा मैंने बोला है इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिंस लास्ट 3 years, चौथा मैंने बोला है कि डायरेक्टर्स प्रमोटर्स फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एंड डिपॉजिटरी एक्ट, पांचवा मैंने बोला है फॉल्स एड्रेस का, और छठा मैंने बोला है शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक फॉल्स बिलो द मिनिमम लेवल। तो ये पॉइंट्स बस आपको याद करने हैं, बाकी का कुछ नहीं देखना क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स सिमिलर हैं, डीलिस्टिंग वाला चैप्टर जो हमने किया है उसके जैसा ही है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। Now we are left with some miscellaneous topics of this chapter, and the important topic which I am left with is relating to regulation number 19। तो 19 regulation जो है वो हम कल take up करेंगे and hopefully your chapter will be over tomorrow। So आज के lecture में यहाँ तक रखते हैं, we will continue tomorrow। Thank you very much।